Hello everyone. So in this video lecture I'm going to discuss next 4 questions of Master Cadre paper 2017. Again these questions are again from the same topic, matrices and determinants. कल हमने 3 questions discuss किए थे matrices and determinants में से. So there are 4 more questions, 4th one, 5th one, 6th and 7th. They are again from matrices and determinants topic, plus 2 class का ही topic है, उसी में से 4 questions है. So let's discuss them one by one. These questions one by one. So what is given to you? A is square matrix. A square matrix is that matrix whose order is same. Order means number of rows and number of columns are same. Then A minus A transpose is whatever. What is the option for A minus A transpose? Is it a unit? Is it zero matrix? Is it symmetric or skew symmetric? As we know that unit matrix is that matrix. Unit matrix is that matrix whose diagonal elements are 1 x and rest other elements are 0. And zero matrix is that matrix whose all the elements are 0. And so we know that what is symmetric matrix as C matrix whose transpose is itself, that matrix is symmetric, and skew symmetric matrices are those matrices whose transpose is negative of itself. So these are the definitions. I think definitions you should know what are the definitions of symmetric, skew symmetric, zero and unit matrix. बट हमें इस चीज के बारे में डिस्कस करना है कि क्या A माइनस A ट्रांसपोज यूनिट होगा, जीरो होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा. तो मैथमेटिक्स में हम वन बाय वन एग्जांपल्स भी सोच सकते हैं कि A मैट्रिक्स की एग्जांपल कुछ भी सोच लें, फिर उसको ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करें, हो सकता है हमारा आंसर आ जाए. सो एक चीज दिमाग में रखनी है, आइदर यू गो बाय ऑप्शंस, कि ऑप्शंस को रिजेक्ट करिए, या आप डायरेक्टली भी आंसर को सोच सकते हैं. So firstly I am going to check these two options C and D, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना इस केस में आसान है. एंड वी नो दैट व्हाट इज दिस, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है. अगर आपने रिजल्ट्स आपको A माइनस A ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स में से जब उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनता है. लेकिन कैसे बनता है, लेट्स चेक इट आउट. दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. पहले सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं है या नहीं है. A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर ये A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, then this particular matrix is symmetric. This is the definition of symmetric matrix. You know that anything is symmetric. Anything is symmetric if its transpose is itself. So this is symmetric if its transpose is itself. लेकिन अगर ये नहीं आया, if it is equals to negative of A minus A transpose, then we can say that matrix is skew symmetric. Then we are done. So let's check it out कि क्या चीज है. I'm solving left hand side, तो देखते हैं हमारा right hand side बनता है या नहीं, इन दोनों में से कुछ बनता है या नहीं बनता. Suppose नहीं बना तो C भी कट गया, D भी कट गया, फिर either answer is unit matrix or answer is zero matrix. Fine. So I am going to solve left hand side. So what is my left hand side? It is A minus A transpose. Dash means transpose. Dash का मतलब है transpose. So as we know that when there is a negative sign inside or plus sign inside, जब B transpose अंदर जाएगा अकेले के साथ चला जाएगा. A transpose minus A transpose transpose. And A transpose is again A, we know that. So this is A transpose minus A. So if I take minus common, it is A minus A transpose. So look at the result. क्या मिला हमें, ये चीज मिल गई. इस चीज का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आया, इसका मतलब ये चीज क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक. सो आंसर इज डी. सो ऑप्शन इज डी. सो दिस इज द वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. देयर आर मेनी अल्टरनेटिव वेज कि आप ऑप्शंस एक एक करके एक एग्जांपल ले लीजिए किसी मैट्रिक्स की, 2x2 की मैट्रिक्स की एग्जांपल, तो आप ऑप्शन रिजेक्ट करते जाइए, तो उससे ये होगा फिर आपको 3 ऑप्शंस रिजेक्ट करने पड़ेंगे. Otherwise you go by this method, again directly you get your answer skew symmetric. आधे मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. It will hardly take half minute. इससे ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है कम में भी हो जाए, लेकिन अगर if you know the result तो आप देखते ही इसका आंसर टिक कर सकते हैं. So this is the discussion of question number 4th. Answer is skew symmetric matrix. Answer is option D. So
Next question is fifth one. This is the question of determinant. This is the symbol of determinant. It is again determinant of 3 cross 3 matrix. It is again determinant of 3 cross 3 matrix. So there are I think more than 2 ways to solve such kind of determinant. अगर आपको determinant solve करना आता है तो आप directly भी solve कर सकते हैं इसको. Or there are some. So firstly, in order to solve this question, I'll discuss one or more properties of determinant. There are many ways to solve this. I'll discuss here each and every way to solve this question. So firstly, solve by properties of determinants. What are those properties? Let's discuss first properties of determinants. जो जरूरत है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. But if you know the properties, आप में से बहुत बच्चों को प्रॉपर्टीज पता होंगी, तो ये क्वेश्चन आई थिंक हार्डली इट विल टेक हाफ मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. एक बार प्रॉपर्टी सुनिए क्या है. व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज determinant is possible for square matrix, that we know that. This is again square determinant. So if first, which is important, which जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, determinant of a matrix जीरो होता है. किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैनिश बोलते हैं, जीरो होता है इफ any two rows or columns, कोई भी 2 rows या columns, if any 2 rows or columns of that matrix of A, एक ही बात कर रहे हैं, are identical का मतलब सेम हो. अगर कोई भी 2 rows डिटरमिनेंट की, कोई भी इसमें दिख तो रहेंगे हमें, कोई भी 2 rows सेम, ये 2 कॉलम सेम नहीं दिख रहे. अगर बाई चांस हमें दिख जाते हैं सॉल्व करने के दौरान, तो उसका डिटरमिनेंट 0 आंसर आएगा. तो ठीक है, आंसर ऑप्शन में 0 भी पड़ा है, तो लेट्स चेक इट आउट. सो वन मोर प्रॉपर्टी, याद रखना इस चीज को भी. जब भी डिटरमिनेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, दिमाग में रखना. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वी हैव 1 2 3 4. दिस इज माय डिटरमिनेंट. जब भी मैंने डिटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना. जब भी किसी नंबर, स्केलर, दिस इज स्केलर नंबर, दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी रैशनल, दिस कैन बी इरैशनल, दिस कैन बी एनीथिंग. जब भी किसी एलिमेंट को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये एलिमेंट सबके साथ नहीं जाएगा. सबके साथ तब जाता है जब ये मैट्रिक्स होगी. दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स 1 2 3 4. So when I multiply 2 with this determinant, ये 2 इसकी मर्जी है, या तो ये फर्स्ट रो के साथ जाएगा, या ये सेकंड रो के साथ जाएगा, या ये फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगा, या ये सेकंड कॉलम के साथ जाएगा. तो वो आपकी मर्जी, वो मैं क्वेश्चन की नीड पे डिपेंड करता है. तो मैं फर्स्ट रो के साथ ले जाता हूँ इसको, तो क्या बनेगा 2 4, बाकी सेकंड रो रिमेन सेम. तो लेट्स चेक इट आउट. चेक करते हैं क्या ये दोनों चीजें सही है, क्या ये दोनों चीजें इक्वल है या नहीं. लेट्स चेक इट आउट. डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं 2 क्रॉस 2 का, यू नो दैट. This minus this, it is 8 minus 12, which is minus 4. So left hand side भी solve कर लेते हैं. 2 बाहर पड़ा, this is 4 minus 6, it is minus 2, again minus 4. So left hand side is equals to right hand side. So इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, मेरी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही. अब यही प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ लगाऊं, तो आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, if you know this property. Fine. So let's discuss this question now. So let's discuss this question now. So now, this is my determinant. Let's check it out. If I multiply with first column, this is my first column. मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई कर दिया. क्या किया, लेट्स चेक इट आउट. ABC से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया. फर्स्ट कॉलम को ABC से मल्टीप्लाई कर दिया. लेट्स चेक इट आउट. अब मल्टीप्लाई ऐसे तो कर नहीं सकते. अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो बाहर मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब भी डिटरमिनेंट में से हमने कुछ, ये देखिए ये सेम सिचुएशन है.
अब डिटर्मिनेंट में से जब भी कॉमन निकालना है, या किसी एक रो में से कॉमन निकलेगा या एक कॉलम में से कॉमन निकलेगा, तो मैं इसमें से कॉमन निकाल दिया, तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालता हूँ तो ये सिचुएशन बनती है, चेक कर सकते हैं आप। तो वही चीज की, अगर मैं एबीसी कॉमन निकालता हूँ फर्स्ट कॉलम में से, तो वो एबीसी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट यही रह जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं इससे, ठीक। लेकिन इससे क्वेश्चन में बहुत, अब आंसर है आपका, अब ध्यान से देखिएगा, ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया, सो क्या बचा, ध्यान से सुनना, बीसी बीसी, एसी एसी, एबी एबी, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। और हमने अभी रिजल्ट पढ़ा है कि अगर 2 कॉलम्स या 2 कोई रोज आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो आंसर मेरा क्या है, और बी ऑप्शन, आंसर मेरा क्या है, बी ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज हमें पता होती हैं, क्योंकि बिकॉज वी नो जो बच्चे मैथ्स का ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, +2 का टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं बोल सकते, ये प्रॉपर्टी सबको पता होती है, बट जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। आप में से 90 हो सकता है 100% बच्चों को पता हो, लेकिन फिर भी आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, सो मेरा ये पर्पस है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हियर। सो डिटर्मिनेंट इज कमिंग आउट टू बी 0, अदरवाइज 90 आप मान सकते हैं 99% केसेस में जितने क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट के ऊपर बनते हैं ना, अगर ऑप्शन में 0 पड़ा ना, अगर तुक्का लगाना है, सपोज तुक्का वैसे लगा नहीं सकते, दिस इज द रॉन्ग वे। सपोज आपका क्वेश्चन नहीं आता, डिटर्मिनेंट्स नहीं सॉल्व कर सकते, डिटर्मिनेंट इवन यू डोंट नो हाउ टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट, तो अगर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आए, ऑप्शन में 0 पड़ा हो, 99% चांसेस होते हैं 0 आंसर होता है उसका, 100% चांसेस, मैं 99 ही मान के चलिए, 99% चांसेस होते हैं उसका ऑप्शन 0 होगा, ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर, और आंसर भी 0 ही होगा उसका, तो 0 पे टिक करके आगे चलिए, अगर नहीं आता तो, लेकिन आता तो सॉल्व करिए। सो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अदर वे, जो दूसरा वे है वो है इस डिटर्मिनेंट को, सेकंड वे इज व्हाट, इसको एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड कैसे करते हैं, आइदर अलोंग फर्स्ट रो और अलोंग सेकंड रो और अलोंग थर्ड रो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो स्टेप आपका आई थिंक हार्डली 1 से 2 मिनट, 2 मिनट तो कम से कम ले ही जाएगा कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक प्लस माइनस की गड़बड़ हुई तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो आपसे। सो दैट इज द सेकंड वे कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, बाय एक्सपेंशन, दैट इज योर सेकंड वे। सेकंड वे इज बाय एक्सपेंशन, कि एक्सपैंड कर दीजिए डायरेक्टली इसको, एक्सपैंड इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट ओवर हियर, डायरेक्टली बाय एक्सपेंशन, दिस इज बाय प्रॉपर्टी, दिस इज बाय एक्सपेंशन। एंड थर्ड वन इज कई लोग बच्चे उस मेथड की तरफ भी जाते हैं, सो व्हाट इज दैट मेथड, लेट्स डिस्कस इट। सो थर्ड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, एबीसी के बारे में कुछ बोला तो गया नहीं, एबीसी क्या है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट ए एज 1, बी एज, यू कैन नॉट टेक एबीसी, एनी ऑफ एबीसी में से तीनों में से किसी को भी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि इट इज इन रेसिप्रोकल फॉर्म, अगर ले लोगे तो दैट नंबर, दैट पर्टिकुलर टर्म विल बी नॉट डिफाइंड, सो यू कैन नॉट टेक 0, सो आई टेक ए बी ले लिया 1, सी ले लिया 3, सो व्हाट इज माय डिटर्मिनेंट नाउ, इट इज इक्वल्स टू 1 6, 3 to the 6, BC, it is 1 by B, it is half, it is 4, again it will take I think hardly 1 minute, 1 minute भी एक मिनट से ऊपर ही लेगा I think, CA 3, 1 by C is 1 by 3, C square is 9, AB is 2, so now expand this, कैसे expand करते हैं, plus minus plus, so take this element out with sign, so ये एलिमेंट जिस रो में पड़ा है, जिस कॉलम में पड़ा उसको भूल जाओ, जो पीछे बचा उसको नोट कर लेते हैं, then take next element out, -1 with sign, so ये जिस रो में पड़ा, जिस कॉलम में पड़ा उसको डिलीट करके जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लेना है, 2 1 by 3 3 2, last one is plus 6, what is left, 1 by 2 1 by 3 4 9, ये चीज आ गई है ना, ये चीज आप देखिए, ये चीज हमारी आ चुकी है यहां तक, बस अब कुछ नहीं करना, इसको एक्सपैंड कर देना, आपका आंसर है, आपका आंसर 0 आएगा डेफिनेटली, चेक कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 8 minus 12 which is -4, which is -4, -1 is already outside, what is this, this is half, this is 1,
when you multiply half with 2 it is 1 minus 1 which is 0, and when you solve this plus 6 is out already. So what is here? It is 9 by 2. It is 9 by 2. It is 9 by 2 minus 4 by 3. ये आ गया. अब फिर भी वही चीज है ना, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, इस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा. So what is my answer now? It is minus 4 plus 6 times. I need 4 here. Only then my answer will be 0. So what is my LCM? 6 is the LCM. My LCM is the 6. So what is upward? 2 3 is 6, 9 3 is 27. Minus 3 2 is 6. It is 8. है ना? I think हमने कहीं गड़बड़ की है. 3 3 is 9. AB is 2. CA is 3. BC is 6. That is fine. This is 1. This is 1. This is 1 by 2. This is 1 by 3. B square is 2. C square is 9. This is okay. Fine. This is 8 minus 20. Oh, fine. This is, here is the mistake. This is not 4. It is 8 minus 27. 8 minus 27. Which is 8 minus 20 is 19. 8 minus 27, which is 19. Which is minus 19 or plus 19? Which is minus 19. It is minus 19. So we have here minus 19. So ये 6 से 6 cancel. It is plus 19. So plus 19 minus 19 will cancel out, give you answer 0. So again answer is 0. But this processes calculation में mistake हो सकती है ना? तो this is again expansion. You take ABC, कुछ भी ले लो, ABC को आप 1 1 1 मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ABC को 1 1 1 ले लीजिएगा तो आंसर तो डायरेक्टली 0 आ जाएगा. तीन रोज, तीनों की तीनों रोज सेम हो जाएंगी अगर 1 1 1 ले लीजिएगा. तो you have to choose different one. So ABC. Third is this is the alternative, third way. So you can, there are many ways again. So this is the exact way to calculate such kind of questions. But competitive exams के अंदर hit and trials चलते हैं, तो you can take any, you can choose any method. Either you directly expand this also. Again answer will be 0. But you have to choose the alternative way. कौन सा way आपने choose करना, that is up to you. So this is the third alternative way to solve this question. So let's move on to third question. So third question is basically from the simultaneous linear equations. These are the three linear equations. वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा solution है. Solution का मतलब x और y की कौन सी values हैं जो तीनों को satisfy करेंगी. Solution का मतलब ये है, ये दिमाग में होना चाहिए आपके कि ये अगर वो solution की बात कर रहा है तो solution का मतलब कि ऐसी x और y की वैल्यू जो दोनों को, तीनों को satisfy करें. Because we have three equations. So पहला ऑप्शन है नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी x और y की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती. लेट्स चेक इट आउट. कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. आई सपोज आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. आई थिंक ये आपको सॉल्व करना आता होगा इसको, है ना? दिस इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, व्हिच इज फाइन. और एक चीज और भी इसमें मजेदार है. इसमें एक चीज अगर और देखें हम, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरी यही इक्वेशन बनेगी. यू कैन चेक इट आउट. मैंने सब्ट्रैक्ट दिस 3x minus 2x is x, 2y minus y is y, 2 minus 4 is minus 2. So when I subtract this, I get this. So let's check it, how many solutions are there. Firstly check. So cross multiply. This is multiply by 3. This is multiply by 2. So what is this? This is 6x. I can solve directly, but if anyone की simultaneous equations को कैसे solve करते हैं, so this is the way. Either you can go by elimination, जो भी आपको सही लगता है वो आप उससे solve कर सकते हैं इसको. It is 12. So it is 6x plus 4y is equals to 4. It is minus minus minus. We sign change बोलते हैं इसे. So minus y is equals to 8. So y is coming out to be minus 8 and x is coming out to be. Substitute this y कहीं भी डाल दीजिए, आपकी मर्जी है.
So if I substitute in the one equation, is 2x minus 8 is equals to 4 and x is equals to 6. This means these are the two values. These two values satisfy these two equations. क्या ये values इसको satisfy कर रही हैं? This is the main point. क्या x और y ये हमने कहां से निकाला? ये यहां से निकाला. इन दो इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन है, which is, वो तो हमें पता ही, अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, डिफरेंट साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, उनका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा. एक ही यूनिक सॉल्यूशन है कि इनका, इसको मैं नंबर 1 मान लेता हूं, इसको नंबर 2 मान लेता हूं. यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास किसका? 1 and 2 इक्वेशन. इनका सॉल्यूशन यूनिक है. हमें तीनों की बात करनी है कि तीन इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है. क्या ये दो पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट हियर. I put x equal to 6 here and y is equal to minus 8 here. 6 minus 8 is minus 2. These points also satisfy this equation. इसका मतलब ये इसका भी solution बन गया. Fine. इसका मतलब no solution तो वैसे ही कटेगा. वो बोल रहा था solution है ही नहीं. एक solution तो मिल ही गया मेरे को. एक से ज्यादा solution मेरे को मिल ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि इन दोनों equations का एक से ज्यादा solutions नहीं हो सकते. इन दोनों equations के एक से ज्यादा solution नहीं हो सकते. तो तीनों के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं? विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो आंसर इज बी. सी भी कट गया आपका, डी भी कट गया आपका. क्योंकि हम बोल रहे हैं कि दो डिफरेंट साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एक ही आंसर है. एक से ज्यादा मिलेगा ही नहीं एक्स और वाई की वैल्यू, और वही एक्स और वाई की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रही है. ऑल्दो इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज और भी बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन हमें वो वैल्यूज चाहिए एक्स और वाई की जो तीनों को सेटिस्फाई करें. सो डन. सो दिस इज ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर. सो यू गेट योर आंसर. So option is B. Option is here. So for third question, my answer is option number B, which is 1. So let's move on to last question. The question is simple. A transpose is equal to minus A. A transpose is given to be minus A. So let's discuss last question. तो उसके बाद हम एंड करेंगे वीडियो का. So matrix is given to be skew symmetric. So एक रिजल्ट याद रखिए. Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix of odd order has determinant 0 होता है. So ध्यान से सुनिएगा. ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. क्यों? क्योंकि A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल है. ऑर्डर कितना है इसका? 3. मैंने क्या बोला? ऑड ऑर्डर कौन से होते हैं? 3 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 7 ऑर्डर. तो 3 ऑर्डर की है और उसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी. सो ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, उसका डिटर्मिनेंट पक्का 0 होता है. हाँ, अगर इसके बारे में अगर किसी और को डिटेल में जानना होगा तो मैसेज सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि अगर इसका कोई अल्टरनेटिव वे आपको जानना है. ठीक है, इसका प्रूफ भी हो सकता है, प्रूफ भी मैं करवा सकता हूँ आपको. सो थैंक यू वेरी मच.